بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ وہ اپنے بڑے بیٹے پر چیخ رہی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر کتوں والا سلوک کیا۔ اس نے اپنا نوکر بنا کر رکھا۔ وہ بیچارہ اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ اسے جواب بھی دے سکتا۔ لڑکے اور لڑکی والوں کی پنچایت بیٹھی تھی تاکہ ناگزیر طلاق کو روکا جا سکے۔ لڑکے کی ماں ابھی بھی زہر اگل رہی تھی۔ یہ تو چور ہے، اپنے بھائی کو گھر میں بلا لیتی تھی اور بیگ بھر بھر کے سامان پیچھے بھیجتی تھی۔ میری تو سونے کی اینٹیں تک غائب ہیں۔ وہ فرعونیت کے آخری درجے پر تھی۔ ہم نے تو اس شادی کا یہ صفحہ ہی پھاڑ ڈالا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 طلاقیں جا چکی تھیں، اب صرف 1 طلاق باقی تھی۔ لڑکی والے ہر الزام کو برداشت کر رہے تھے کہ وہ گھر بسانا چاہتے تھے، لیکن لڑکے کی ماں اپنے گھر میں ایک ہٹلر تھی، اور جس گھر کے فیصلے عورت کے ہاتھوں میں ہوں وہ گھر تباہ ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے۔ ابھی اس کا زہر ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا رابطہ اس کی ماں کے ساتھ ہے، وہی اس کو پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے۔ اس کا موبائل چھینا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ لڑکی والے لڑکی کی ماں کو ساتھ نہیں لائے تھے، وہ مزید بدمزگی نہیں چاہتے تھے۔ لڑکے کی طرف سے جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی طلاق کے حق میں نہیں تھے۔ ایک گھر توڑنے کا گناہ کون اپنے سر لیتا ہے؟ جب کوئی ٹھوس وجہ بھی موجود نہیں تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ساس کے روایتی الزامات کی بھوچاڑ کو کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ لڑکا بھی بے رحمی کے ساتھ اپنی ماں کی طرفداری کر رہا تھا۔ صرف ایک بندہ کچھ اور سوچے جا رہا تھا۔ یہ لڑکے کا چچا تھا۔ یہ آج سے برسوں پہلے اس وقت بھی موجود تھا۔ یہ آج سے اس وقت بھی موجود تھا جب لڑکے کے باپ کی طلاق کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ سوچے جا رہا تھا، او میرے خدایا، کیا وقت کا پہیہ الٹا چل رہا ہے؟ کیا اب بھی وہی کچھ ہوگا جو 22 سال پہلے ہوا؟ کیا اب بھی ایک معصوم لڑکی انا کی بھیڑ چڑھا دی جائے گی؟ اب کی بار بھی فیصلہ تو اوپر سے اترنا تھا، اسی کا انتظار تھا۔ برسوں پہلے کی بات۔ کبیر اور صغیر 2 بھائی اپنے والد کے ساتھ اپنے سٹور پر ساتھ ساتھ کام کرتے تھے۔ سٹور خوب چلتا تھا۔ بڑا بھائی کبیر ہی سٹور کو زیادہ تر سنبھالتا تھا۔ خوبصورت نوجوان تھا اور سٹور پر ہر طرح کی خواتین کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکثر دکانیں آج کل بھی عشق و معشوقی کی جھوٹی سچی داستانوں سے رنگین ہوتی ہیں، خاص طور پر ایسے سٹور جو بہت چلتے ہوں۔ ان کے نوجوان مالک خاص طور پر اور خوش شکل نوکر عام طور پر اکثر رنگ برنگی پریوں کے ساتھ محو ملاقات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی ملاقات پر شک بھی کم کم ہی ہوتا ہے۔ صغیر بیچارے کی ڈیوٹی والد کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کا چکر بھی کبھی چل ہی نہیں سکا۔ اس کے برعکس کبیر کے پاس موقع بھی تھا اور روپیہ بھی۔ اس کی کئی منہ بولی بہنیں اور پھوپھیاں تھیں جو ان چھوٹے رشتوں کی کالے پردوں میں اپنے نفس کی پوجا کیا کرتی تھیں۔ والد صاحب کے من میں پتہ نہیں کیا سمایا کہ اپنی بیگم کا ہاتھ تھاما ایک رشتہ دار کے گھر گئے اور کبیر کا رشتہ طے کر دیا۔ کبیر کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی۔ جب کبیر نے اپنی بیگم کو دیکھا تو اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہ زنجیر توڑ کر رہے گا۔ اس کو اپنی ساملی بیگم پسند نہیں آئی تھی۔ کبیر کماؤ پوت تھا اور اس کے والدین نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی لڑکی کو یہ کہہ کر کہ لڑکے کو پسند نہیں، اس کے گھر واپس بھیج دیا، اور وہ اپنی پیٹھ میں لڑکے کی نشانی لے کر روتی بیٹھی اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ طلاق ابھی ہو نہیں سکتی تھی۔ لڑکے کے گھر والوں نے انتہائی کوشش کر لی کہ علیحدگی نہ ہو، لیکن ان کی ساری کوششیں رائیگاں چلی گئیں۔ لڑکی والوں نے طے کر لیا تھا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو ہم اسے جوان کریں گے اور اسے باپ سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کے باپ کے گھر بھجوا دیں گے۔ لڑکی نمرہ پیدا ہوئی اور اس کی ایک ہمسائے کے ہاتھ کبیر کے گھر بھجوا دیا گیا۔ لڑکی ماں پر تھی اور کبیر کبھی بھی اسے باپ کا پیار نہ دے سکا۔ وہ لڑکی اپنے دادا اور دادی کے سائے میں پروان چڑھنا شروع ہو گئی۔ صغیر چاچو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کبیر کی رنگین زندگی پھر سے تتلیوں سے آباد ہو گئی۔ انسان کے پاس عمل کا اختیار ضرور ہے، لیکن جیسا بیج وہ بوتا ہے اسے ویسی فصل کاٹنی پڑتی ہے۔ چاچو صغیر اپنے بھتیجے ولید کی پنچایت میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ ولید کے باپ کبیر کی دوسری شادی کی بات شروع ہوئی۔ اس بار اس کے والدین نے دیکھ بھال کی ایک ایسی متعلقہ لڑکی انتخاب کی جو لڑکے کو بھی پسند آ گئی۔ اب کی بار شکل و صورت دیکھی گئی، لیکن ہمیشہ کی طرح نصیب کے پار کوئی نہ جھانک سکا۔ نصیب جو ہمیشہ سے ایک معمہ، ایک پہیلی رہا ہے، کبھی سانولی لیلا کو مجنوں کے سر کا تاج بنا دیتا ہے اور کبھی کبھی رنگین جولیٹ کو مٹی میں رول دیتا ہے۔
कबीर की इस दूसरी बेगम ने घाट घाट का पानी पिया हुआ था। ये हसीन नागिन ने बहुत बुरी तरह से कबीर को अपने सुनहरे जाल में जकड़ लिया। इसके यहाँ जब पहला बेटा वलीद पैदा हुआ तो इसके पांव मजीद मजबूत हो गए। अब इसने अपने रंग और मुकर दिखाने शुरू कर दिए। वो पहले घर से मात खाकर निकली थी और अब वो सिर्फ जीतने के लिए खेलना चाहती थी। वो तो महज कहानी का किरदार थी जिसे खालिक अजीम ने मकाफाते अमल के लिए चुन लिया था। ये नागिन रूबी थी जिसके पास पूरे 350 मुकर का खजाना मौजूद था। जिस मौके पर जिस मुकर की जरूरत पड़ती थी वो बड़ी मकारी से इस्तेमाल करती थी। इससे घर के तमाम अफराद का जायजा लिया। दोनों नंदों को जल्दी जल्दी इनके घरों को रवाना किया और बड़ी बहू होने का हर हक हासिल करने लगी। फराइज वो सिर्फ अपने खामिद के ही बजा लाती थी। सास ससुर तो इसके लिए रुकावट थे और इसकी सौतेली बेटी तो सिर्फ अपने वालिदैन को सैर पर आते जाते देखती और जब जिद करती तो इसे बुलकता हुआ छोड़कर वो दोनों अयाशी के लिए रवाना हो जाते और सगीर चाचू निमरा को गोद में उठाकर बाहर घुमाने के लिए ले जाता। सगीर चाचू को माजी की दुनिया से वापस पंचायत में आना पड़ा। इसकी भाभी रूबी चीख चीख कर अपना फैसला सुना रही थी। मैं कभी भी इस चुड़ैल को अपने घर में नहीं रखना चाहती। ये मेरे छोटे बेटे को और हमें अपना नौकर बनाना चाहती है। ये हमारी दौलत पर कब्जा करना चाहती है। ये हमें मार देना चाहती है। रूबी अजियत में थी, लेकिन इस अजियत का बीज इसने खुद अपने हाथों से आज से बरसों पहले बोया था। वो भूल चुकी थी, लेकिन बेशक आपका रब कभी नहीं भूलता। सगीर चाचू के दिल में कहीं अपने रब की तदबीर पर ईमान मजीद पुख्ता हो गया और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। रूबी ने पहले कबीर को हाथ का खिलौना बनाया और इस पर रूबी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा, जो उसे रूबी के नाम की माला जपता रहता था। रूबी का देवर इसके लिए दर्द बन गया जब इसके वालिदैन ने इसकी बहन का रिश्ता सगीर के लिए लेने से इनकार कर दिया। नागिन गुस्से से खोलने लगी। अब की बार कोई भी रास्ता नहीं था। इसने सबसे पहले चूल्हा अलहदा किया और फिर कबीर के हाथों सगीर को जलील करवाना शुरू कर दिया। स्टोर पर आते जाते कबीर सगीर को टटोलता कि कहीं वो कोई रकम तो नहीं लेकर जा रहा। वालदा बीमार पड़ गई और वालिद दिल के मरीज हो गए। वलीद की पंचायत में रूबी के वावेले जारी थे। कोई घर पर नहीं था और इस कमीनी ने छुरी उठाकर मुझ पर हमला कर दिया। मैं बाल बाल बची। इसने मुझे बीमार कर दिया। डॉक्टर कहता है कि मुझे जहर दिया जा रहा है जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मार कर ही छोड़ेगा। मेरी तो नींद उड़ गई है। इसे मैं अकेला घर नहीं छोड़ सकती कि कहीं ये सब कुछ लूट करना चली जाए। सगीर एक बार फिर माजी में खो गया। किधर जा रहे हो तुम लोग बेटा? सगीर की वालदा कबीर और रूबी से पूछ रही थी, जिन्होंने अचानक अपना सामान बांधकर घर से चले जाने का फैसला कर लिया था। कबीर पहले ही चोरी छुपे तमाम इंतजाम कर चुका था। इसकी वालदा रो रही थी, ना जाओ कबीर, हमें छोड़कर ना जाओ। जब वालदा की नजर रूबी पर पड़ी तो उन्होंने अपना दामन उठा लिया और सिर्फ इतना कहा, रूबी सारी जिंदगी भटकती रहोगी, ना जाओ। लेकिन रूबी तो इस वक्त अपने जोबन पर थी। रोनत के साथ इसको ठुटकार कर वहां से चली गई। आज बरसों बाद वलीद की पंचायत में रूबी की आवाज गूंज रही थी, बस एक बार ये मामला खत्म हो जाए, मैं घर ही बेच दूंगी। मामला कैसे खत्म हो जाता? इसकी बहू तो इसके गले का ऐसा ढोल बनने जा रही थी जिस रूबी को हमेशा बजाना था। वो इसके लिए ऐसे जख्म का नासूर थी जो इसने अपनी सास के सीने पर लगाया था। वक्त का पहिया उल्टा चलना शुरू हो गया था, बस किरदार बदल गए थे। वलीद जब जवान हुआ तो रूबी को इस पर बड़ा घमंड था। इसने अपने खानदान में वलीद की मंगनी पर एक दो बार की, लेकिन तोड़ दी। इसके अपने खानदान वाले भी इसकी तरह थे और रूबी सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती थी। वलीद ध्यान से गाड़ी चलाओ। वलीद अंधे हो, रास्ता दिख नहीं रहा तुम्हें? वलीद नहर वाले पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है। वलीद और कबीर तो रूबी के इशारों पर नाचते थे। सगीर का और बाकी घर वालों का पूरा यकीन था कि रूबी जादू टोने पर यकीन नहीं रखती, बल्कि अमल भी करती है। रूबी ने सौतेली बेटी को दादा की दुनिया से चले जाने के बाद अपने पास बुला लिया और सौतेलेपन की नई तारीख रकम कर दी। निमरा के साथ इसके मरहूम दादा दादी की शायद दुआएं थी कि वो किसी तरह रूबी के चुंगल से आजाद होकर पियादेर सुधार गई और रूबी ने पूरी कोशिश की कि इसे वहां से तलाक हो जाए और दामाद को घर से धक्के देकर भी निकाला जाए। लेकिन खुशकिस्मती से निमरा का घर बचा रहा, वगरना हमेशा के लिए वो अपनी सौतेली माँ की चाकरी करती रहती। अच्छे लोग थे। निमरा के हुस्न सलूक ने इसके सांवलेपन को शिकस्त दे दी। वलीद की पंचायत भी तो निमरा के घर में ही लगी हुई थी। अभी तक फैसला नहीं हो पाया था। रूबी और कबीर की आंखों पर दौलत की पट्टी बंधी थी।
इन दोनों के लिए तलाक मामूली बात थी कि खुद इसका मजा चखते थे। अब बेटे को भी इस शजरे ममनू की तरफ लेकर चल रहे थे। जब रूबी बोल बोलकर थक गई तो सगीर चाचू ने इसकी बहू के सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा आपको इनसे कोई शिकायत है तो बताओ। इसे सिसकते हुए कहा कि इसे कोई शिकायत नहीं है और इसे माजरत भी की। लेकिन रूबी जो खानदान की सरबराह थी टस से मस न हुई। पंचायत बेनतीजा रही। तलाक में चंद दिन बाकी थे। सगीर इस वक्त भी मौजूद था जब वलीद की फुप्पो ने अपनी बेटी के लिए रूबी से इशारे में वलीद के लिए बात की। रूबी ने वलीद की फुप्पो को, जो किराए के घर में रहती थी, सिर्फ इतना कहा, बल्कि इनको ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई कि वो शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे वलीद के लिए तो गाड़ियों वाले, बंगले वाले रिश्ते आ रहे हैं। मैं तो अपने वलीद की शादी कहीं ऊंची जगह करूंगी। तुम्हारी बेटी इस काबिल नहीं है, इसका रिश्ता अपनों में करो। फिर ऐसा क्या हुआ कि वलीद की शादी एक सांवली सलोनी और वाजबी सी शक्ल सूरत वाली सारा से हो गई? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जब तकदीर का वार होता है तो इंसान अंधा और बहरा हो जाया करता है। वक्त के फिरौन हमेशा से तकदीर से मात खाते चले आ रहे हैं। ताकत का गुरूर हो या दौलत का नशा, तकदीर के तीर से हमेशा तहस नहीं हो जाया करते। रूबी को भी इस वक्त होश आया जब वलीद की अमीर कबीर दुल्हन घर में आकर बैठ गई। मोहल्लेदारों ने भी दबे दबे अल्फाजों में बातें करना शुरू कर दी। इतना वजी और शहजादा लड़का और इतनी वाजबी सी शक्लो सूरत वाली पिस्ता कद लड़की, यकीनन शादी में बराबरी होनी चाहिए, लेकिन आजकल दौलत का तराजू कोयले को भी हीरा बना देता है। रूबी को इन बातों की सुनकर तो हीन तो महसूस होती थी। इतने में वलीद का एक बेटा भी हो गया जो मां पड़ गया था। रूबी मजीद आग बगोला हो गई और फिर इसने शादी का इस सफा हमेशा के लिए फाड़ने का फैसला कर लिया। सगीर ने दबे लफ्जों में सालसी की पेशकश की, लेकिन अब भाई और भाभी की हटदर्मी को देखकर पीछे हट गया। खानदान के नाम पर एक और धब्बा लगने जा रहा था। बस चंद दिन बाकी थे। एक दिन अचानक रूबी ने सगीर को बुलाया कि थाने चलना है। लड़की वालों ने इन पर तशद्दुद का पर्चा कटवाया था। लड़की के वालिद की पहुंच ऊपर थी और इसने घी निकालने के लिए अपनी उंगलियां टेढ़ी कर ली थी। अब की बार पंचायत थाने में लगी थी। थानेदार ने कबीर एंड फैमिली को वाज़ेह तौर पर बताया कि इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो लड़की बसाएं या फिर जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाएं। अब कोई भी कबीर और रूबी के साथ नहीं खड़ा था। क्या वो ये कहते कि लड़की काली है, बदसूरत है? पूछा जाना था कि रिश्ते करते वक्त क्या वो अंधे थे? जब मौत का वार होना है तो ट्रेन भी नजर नहीं आती। जब फिरौनियत का इंजाम लिख दिया जाए तो मूसा को इसके अपने घर में परवान चढ़ाया जाता है। जब कारून का वक्त पूरा हो जाए तो इसके खजाने भी इसके साथ दफन कर दिए जाते हैं। जिस पर कबीर और रूबी को गरूर था, इस दौलत की देवी ने भी हाथ उठा लिए। वक्त की चक्की आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, लेकिन पिसती चली जा रही थी। रूबी के लिए इसकी बहू एक ऐसी हड्डी थी जो इसके हलक में फंस गई थी। वो इसे ना ही उगल सकती थी ना निगल सकती थी। इन्होंने जेल की यात्रा करना मुनासिब ना समझा और बादे नाख्वास्ता अपनी बहू को बसाने का फैसला कर लिया। वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहू का सब्र इसे दोबारा अपने घर ले आया। रूबी को भी अंदाजा हो गया कि वलीद के ससुराल वाले इतने असर रसूख के मालिक हैं। रूबी को अपने अल्फाज चाटने पड़ गए। इसे पहली बार अपनी शिकस्त का जख्म चाटना पड़ा। तकदीर के खेल पर लोग शिशुद रह गए और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। यकीन कर लीजिए कि एक पता भी इस कादर मुतलिक की मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता। ईमान रखने की मजलूम की आह को जालिम के सीने में पेवस्त कर दिया जाता है। याद रखें कि इस अदालत उज़्मा का फैसला उतरने में देर तो हो सकती है, लेकिन ये अंधेर नगरी हरगिज नहीं। मुतमईन हो जाएं और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस मजलूम बन जाएं, लेकिन जालिम कभी ना बने। वो क्या है कि कुछ लोग अंधे और बहरे हो जाते हैं कि इनकी तकदीर खुद अपने अमाल से लिखी गई होती है। वो तकदीर की धचकों से कुछ नहीं सीखते, जबकि इर्द गिर्द के लोगों के लिए इनकी जिंदगी इबरतनाक होती है। रूबी भी ऐसे ही कुत्ते की दुम थी जो सीधा दिखने के बावजूद भी 100 साल बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती थी। रूबी अपनी बहू को लेकर तो गई थी, लेकिन इस बार इसने ऐसा मंसूबा बनाया जिसमें इसकी फतह यकीनी थी। वो एक बार फिर तकदीर की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई कि अब की बार वो तकदीर को शिकस्त दे पाएगी या एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। इंसान जो गेंद भी उछालता है वो वापस इसकी तरफ पलटता ही है। यही कानून फितरत है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक अमल करें, अच्छा या बुरा, इसका कोई रद्द-ए-अमल ही ना हो? इसी अमल के मुकम्मल हो जाने का नाम मुकाफात अमल है। इंसान की हैसियत पूरी कायनात में एक जर्रे के बराबर भी नहीं, लेकिन शैतान इसे ऐसा वर्गलाता है कि वो अपने ही रब्बे जलील के सामने खड़ा हो जाता है।
जब इसकी आंखें बंद होती हैं तब इसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन इस वक्त फसल काटने का वक्त हो जाता है। रूबी को कई धचके लगे कि शायद अपने रब की तरफ पलट आए, लेकिन बदकिस्मती से इसने शैतान का अपने नफ्स का रास्ता चुना। अब की बार इसने मियाँ बीवी के दरमियान ही जुदाई डाल दी। इसने चलता स्टोर होने के बावजूद वलीद को बैरून मुल्क भिजवा दिया और वो भी इसकी बात मानकर दुम हिलाता हुआ धक्के खाने के लिए बाहर चला गया। वो अपनी बीवी और बच्चे को अपने वालिदैन के खास तौर पर अपनी माँ रूबी के रहमो करम पर छोड़ गया। वलीद की बीवी सारा के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इसके घर वालों से पहले ही इसका राब्ता मुनक़ते था। हकीकत ये थी कि इसके घर वालों को इससे मिलने की इजाजत नहीं थी। ये भयानक शर्त रूबी ने खुद सलाह की शुर्त में रखवाई थी। इसके जहन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। औरत भी अल्लाह ने कैसी हस्ती दुनिया में उतारी है जिसे समझना सवाए सुई के नाके में से गुजरने के बराबर है। ये हकीकत है कि वो जिस्मानी तौर पर कमजोर पैदा की गई है, लेकिन अल्लाह ने इससे बहुत से कहते हैं 350 मकड़ों से नवाजा है ताकि वो बर वक्त अपना बचाव कर सके। लेकिन जब औरत यही मकारियां और दाव अपने फंदे मासूम फितरत लोगों को फांसने के लिए इस्तेमाल करती है तो फिर कानून फितरत मुकाफात अमल हरकत में आता है। सारा मुकम्मल तौर पर हथियार डाल चुकी थी। इसके पास कौन सा रास्ता बाकी बचा था? या तो वो जुल्म की चक्की में पिसती रहती और या फिर रूबी के सामने हथियार डाल देती और शर्त के बरखिलाफ अपने घर वापस चली जाती। और शायद यही मंसूबा रूबी के जहन में भी था। इस तरह से सारा का पत्ता खुद ब खुद साफ हो जाता। वो तो अपने पोते को भी छोड़ने पर तैयार थे कि वलीद जवान था और शादी पर शादी कर सकता था। पोतों की ने क्या कमी थी? ऐसी जमीनी खुदाओं के लिए तो मकाफाती अमल का पूरा मुल्क हकीकी ने तैयार किया है। रूबी अब बात बात पर अपनी बहू को ताने भी देती कि इसे कुछ करना नहीं आता, घर के कामों का इसे पता नहीं, इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया नहीं। मेहमानों के सामने भी वो सारा की बेइज्जती कर देती। सारा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसे समझती, इसे अपना और अपने घर वालों की इज्जत का पास था। इसे एहसास था कि इसका रवैया, इसका रद्द-ए-अमल ही इसे तबाह कर सकता है और बचा भी सकता है। साहिबो, सिर्फ बुराई ही वापस शैतान के मुंह पर नहीं मारी जाती, बल्कि अच्छाई भी जन्नत बन के अच्छों की जिंदगी को मौतर कर दिया करती है। सारा सब्र का पहाड़ बन गई और बेशक सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इसके पकने में थोड़ी देर तो लगती है। कबीर ने इस बार भी अपनी चहेती बीवी की ही मानी थी और वलीद को अपने से दूर कर दिया। इसका असर कारोबार पर तो पड़ा, लेकिन बूढ़े कबीर के लिए भी ये वक्त बहुत मुश्किल साबित हुआ। इसका छोटा बेटा अब नॉर्मल नहीं तो नॉर्मल भी नहीं था। वो अकेला कारोबार नहीं संभाल सकता था। एक रोज कबीर स्टोर बंद करके रकम की वसूली के लिए किसी दुकान पर गया। सख्त सर्दी का आलिम था, रात जोबन पर थी और वो अकेला ही बाइक दुकान की सीढ़ी पर रखता हुआ जमीन पर गिर गया। इससे कुछ भी ना हुआ। दुकानदार इसे उठाकर अस्पताल ले गया। कबीर को फॉलेज का अटैक हुआ था। इसका बीपी अचानक शूट कर गया था। रूबी को जैसे खबर हुई तो सबसे पहले इसने कबीर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल के शहर के बेहतरीन प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवाया, क्योंकि गवर्नमेंट का अस्पताल इसके शाया निशान नहीं था। दरूस कहते हैं कि फिरौनियत और कानूनियत के बस में होता है तो सबसे पहले मौत को अपनी जिंदगी से खत्म करते हैं कि यह इनको हमेशा धूल चटाती है। कुर्बान चाहे अपने सोने रब के नाकाबिले तस्खीर कुदरत कामला पर, जो ऐसे लाखों फिरौनों और कारीनों के लिए अकेला ही काफी है। अगर दुनिया में कोई सजा भी बच जाए तो यौम आखिरत की अदालत में इसका हिसाब चलता रहता है। कबीर का बेहतरीन इलाज हुआ, पैसा पानी की तरह बहाया गया। आखिरकार वो अपने पांव पर खड़ा हो गया, लेकिन अब इसे बेड रेस्ट की हमेशा के लिए जरूरत थी। रूबी को अब लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि आखिर वलीद को बाहर भेजने की क्या जरूरत थी। अब रूबी को इसका खमियाजा भुगतना था। मुकाफाते अमल का खेल जारी था। रूबी को मजबूर होकर वलीद को वापस बुलाना पड़ा। सारा खिल उठी और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शोहर जैसा भी हो बीवी के लिए साहिबान से कम नहीं होता। इनका तो एक बच्चा भी था। मियाँ बीवी दोबारा आपस में शेर शुक्र हो गए। अल्लाह ने सारा की झोली एक बार फिर भर दी और बेटे से भर दी। अब तो वलीद भी अपनी बीवी की तरफ झुक गया। इसके ससुराल वाले भी दोबारा से आने जाने लगे। स्टोर दोबारा से चलने लगा। जिंदगी का सफर अभी जारी है। कबीर 2 भाई थे, वलीद 2 भाई हैं और अब वलीद के भी 2 ही बेटे हैं। काश अब वो ऐसा अमल ना करें कि मकाफाते अमल की एक और दास्तान लिखी जाए। अभी तक इनकी जिंदगी में रहमत नहीं हुई। कैसे इनकी बेटी अता कर दी जाए कि इन्होंने अपनी सौतेली बेटी के साथ नारवा सलूक किया था। क्या रूबी अब हथियार डाल चुकी है? कैसे अपनी बेबसी का अंदाजा हो गया है? क्या अब भी वो अपनों की जिंदगी में जहर घोलने से बाज रही है? क्या अब भी वो मकाफाते अमल पर यकीन नहीं रखती? बेशक अल्लाह ही अलीम और खबीर है।